ہاں ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور خیریت حضرت؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں، فون ہی نہیں اٹھاتے ہیں، کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں ہے، مولانا سے ہماری بات کریے، ٹھیک ہے؟ جی جی جی، ٹھیک ہے۔ ابھی کیا نام ہے جان سکتا ہوں حضرت کا؟ مولانا اسلم۔ مولانا اسلم صاحب۔ ہاں رکیے، ہم فون لگا رہے ہیں ان کو۔ اچھا اچھا، لگائیے۔ جی مولانا صاحب۔ ہلو 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 ہلو، مولانا اسلم صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میں جسیم اختر بول رہا ہوں۔ جی جسیم اختر بول رہا ہوں چنئی سے۔ یہ افضل صاحب ہیں جو وہ آپ سے بات کروا رہے ہیں، تو کچھ پوچھنا ہے، بات کرنی ہے۔ جی جی بولیں۔ یہ تقویت الایمان ہے نا؟ تھوڑا سا رک کے رہیے، تھوڑا سا رک کے رہیے، تھوڑی دیر جی جی، بلوٹوتھ لگا لیں۔ ہلو ہاں ہلو، یہ جی بولیے۔ ایک کتاب پڑھ رہا تھا میں، جی تقویت الایمان، جس میں جی اسماعیل دہلوی صاحب جی اس میں تحریر لکھتے ہیں، ایک حدیث کوٹ کرتے ہوئے، یعنی مشکات المصابیح شریف کی حدیث تحریر کرتے ہیں۔ جی ارائیت لو مررت بقبری اکنت تسجد له فقلت لا فقال لا تفعلوا، یعنی مشکات المصابیح شریف حدیث نمبر 3266 ہے۔ یہ حدیث نقل کرتے ہوئے اس حدیث مبارکہ کو لکھ کر خود ہی ترجمہ لکھا کہ بھلا خیال تو کرو، جو تو گزرے میری قبر پر کیا سجدہ کرے تو اس کو؟ کہا میں نے نہیں، فرمایا تو مت کر۔ پھر لکھتے ہیں اپنے مقصد کو اظہار کرتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں مجھے توہین نظر آئی۔ یہ لکھے ہیں، کیا لکھے ہیں، فے لکھ کر کے، میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ تقویت الایمان صفحہ نمبر 88 میں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس طرح سے لکھی ہوئی ہے اور لکھے ہیں، تو یہ گستاخی پر مبنی ہے یا نہیں؟ یہ ہم کو بتائیے، آپ کی کتنی کتابیں ہیں؟ ساری کتابوں کا نام بتائیے۔ آپ حفظ الایمان کی عبارت افضل کے پاس ہے، جیسے تقویت الایمان، صراط مستقیم، جو 5-6 کتابیں ہیں، وہ سارے سوالات، ساری چیزیں ہم کو پتہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے توہین کی گئی ہے، یہ جو عبارت آپ نے حفظ الایمان کی بھیجی ہے، پیلے کلر کا آپ نے کلر کیا ہے۔ نہ، میں حفظ الایمان کی عبارت نہیں بھیجا ہوں مولانا صاحب، مولانا اسلم صاحب۔ ارے ہماری بات سنیں، جس چیز کو آپ عبارت جو بھیجے ہیں، افضل سے پوچھیے، جو افضل میرے پاس بھیجا ہے وہ حفظ الایمان اور علم غیب پر مسئلہ یہاں لکھا ہوا ہے، اور وہ آپ جو بتا رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ہے، ہاں لیکن ہے، مانتے ہیں اس کو، کس کو؟ یہی چیز کو حق مانتے ہیں، جو تقویت الایمان۔ نہیں، ہماری بات کو سمجھیے آپ۔ جی، اس طرح سے آپ نے اعتراض کیا کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہے، تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے سوالات ہیں سب کو ایک جگہ اکٹھا کر لیجئے، سارے جتنی کتابوں کے سوال ہیں سب جگہ اکٹھا کر لیجئے، ایک ہی چیز پر سیریل نمبر سے آپ بات کر لیجئے۔ نہیں، میں ایک تو ایک بات کتابوں کرنے میں کے ہی بات نہیں، کروں گا، میں پورے اگر بنا کر کے میرے پاس کم سے کم 300 تقریباً اعتراض ہیں دیوبندی حضرات پر، میرے پاس جو ان کے عقائد ہیں وہ کفر کے جی حد تک پہنچی ہوئی ہے اور حدیث پاک کی مخالفت ہے، جیسا کہ یہ تقویت الایمان، جیسے رشید احمد گنگوہی صاحب لکھتے ہیں، تقویت الایمان کو پڑھنا رکھنا عین اسلام ہے، انہوں نے بیان دیا ہے، تحریر کیا ہے۔
तो इसमें मैं देखता हूँ ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करते हुए उन्होंने कहा कि यानी हदीस में मिलावट की है कि, और ऐसी हदीस में नहीं है, हालांकि मैंने कहीं नहीं पढ़ा हदीस में। मुझे तो इब्न माजा शरीफ, मिशकात शरीफ, बुखारी शरीफ, दिगर कई अहादीस में मुझे ये बात तो मिली, इन्नल्लाह नहीं, हर्रमा अलल अर्दी अन सुने ताकुला असादल अंबियाए फनबियुल्लाहि हय्युन यरजुक। ये हदीस में मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जमीन पर अल्लाह तबारक व ताला ने अंबिया के जिस्म को हराम कर दिया है कि उसको जिस्म को खाए, उसके जिस्म को खाए, और अल्लाह तबारक व ताला उसे जिंदा रखता है और रिस्क भी अता करता है। ये चीज हदीस में है, लेकिन मर के मिट्टी में मिलने वाली बात हदीस में मौजूद नहीं है, जो इस्माइल दहलवी ने झूठ निस्बत मैं किया। हजरत आपसे यही कह रहा हूँ कि 350 एतराजात हैं, सीरियल नंबर से सारे एतराजात आप लिख लीजिए, फिर सबका जवाब ले लीजिए। नहीं अगर इन बात करना है तो सुनिए हमारी बात, थोड़ी मेरी भी बात सुनिए। अगर बात करना है तो उसूल के दायरे में, भाई जो उसूल जवाबित होते हैं उस जी उसूल और जवाबित के साथ मैं सारे एतराजात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो अगर बात करना है सब नोट करके। दूसरी चीज नहीं, अगर आपको एतराज है उलमाए देवबंद के ऊपर, तो उलमाए देवबंद की एक किताब है अल-मुफन्नद अलल मुहन्नद, इस किताब का आप मुताला कर लीजिए, सारे एतराजात के जवाब इसमें लिखे हुए हैं। अगर आप खुद नहीं, से अब मेरे मुताला हाथ करके में समझना यहीं पर मैं चाहते हैं। रखा हूँ, अल मुहन्नद मेरे हाथ में है। इसमें सफ़ा नंबर 88 में क्या लिखे हुए हैं, खलील अहमद अम्बेठवी क्या लिखते हैं, हमारे नज़दीक और हमारे मशाइख के नज़दीक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र मुबारक में ज़िंदा हैं और आपकी हयात दुनियावी की सी है बिला मुकल्लफ होने के, और ये हयात मखसूस है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम और शुहदा के साथ, बरज़खी नहीं है तमाम मुसलमानों बल्कि सब आदमियों को। ये अकीदा किए हैं कि यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं और बाहयात हैं, उनकी ज़िंदगी दुनिया की सी है, वो इकरार किए हैं अल मुहन्नद अल मुफन्नद में सफ़ा नंबर 88 में। लेकिन यही अकीदा तक़वियतुल ईमान में मैं देखता हूँ कि ये तो मर के मिट्टी में मिलने की बात किए हैं, तो दोनों तजाद हैं, और तक़वियतुल ईमान आइन इस्लाम कैसे हो जाएगा हजरत? आपको वही मैं कह रहा हूँ ना कि जितनी चीजें आप कह रहे हैं कि इस बात को आप जो बता रहे हैं कि तक़वियतुल ईमान ऐन इस्लाम है, ये हमने कहीं नहीं पढ़ा है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। मैं बिल्कुल आपको बता दूंगा इसमें कहाँ पर लिखे हुए हैं। रशीद अहमद गंगोही जो जिनकी इत्तबा में देवबंदी लोगों की निजात लिखे हुए हैं इसमें, समझे? नहीं देखिए, ये सब शख्सियत परस्ती है, ये सब शख्सियत परस्ती कहा जाता है कि उन्होंने लिखा है कि नहीं लिखा है। मसला ये है कि जितने भी एतराजात किए गए हैं हुसामुल हरमैन अला मनहरिल कुफरी वल मैन, ये इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब को लिखा, और आप जानते हैं कि इस किताब में सारे एतराजात को उन्होंने जमा किया था, और इसी किताब का जवाब जो है अल मुफन्नद अल मुहन्नद जो है लिखी गई है। और इस किताब के मुताले से पता चलता है कि उन बुजुर्गों ने गुस्ताखी नहीं की है, समझने में पढ़ने में लोगों को फर्क हुआ है। और दूसरी चीज, मान लीजिए अगर कहीं तकाज़े बशरियत किसी से अगर गलती हो गई तो उसका मामला है। अब मान लीजिए शाह इस्माइल शहीदी के बारे में बात हो रही है, शाह इस्माइल शहीद के बारे में तो इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हम उनको काफिर नहीं मानते हैं। एक जगह तो हम काफिर नहीं मानते हैं कह करके लिखे हैं, कह रहे हैं ना। अगर हजरत मैं इनके बारे में पूरे बता दूंगा मैं इंशाअल्लाह अज़ीज, अगर कहेंगे तो अभी फिल वक्त मैं आपको हवाला भी दे देता हूं, अगर किताब होगा तो शायद आप देख लीजिए। इस्माइल दहलवी के मुतालिक जो पहले जो फतवा दिए थे आला हजरत ने, खामोशी कुछ अफवाहें उड़ गई थी, तो मुफ्तियाने कराम का ये मसलक हुआ करता है और उसूल भी है इस्लाम का कि उस पर फौरन फतवा आयद ना किया जाए, कुफ्र का मामला अशद तरीन है ये, समझे? तो शायद उन्होंने, वो तो बहुत पहले इंतकाल हो चुके थे, इसलिए उन्होंने खामोशी अख्तियार की, वो आला हजरत के दौर में नहीं थे,
अलबत्ता उनकी किताब में जो तक़वियतुल ईमान है, जिसमें 70 कुफ्र यानी कई कुफ्र गिनाए उसमें, जो कुरान हदीस के खिलाफ है। अब रही बात कि आला हजरत क्या वाक़ियतन बाद में भी अगर तहकीक होने के बाद भी क्या उन्होंने उनको मुसलमान जाना है? हरगिज़ नहीं। देखिएगा ये किताब है आफ्ताब सदाकत, जो 1388 हिजरी में ये छपकर यानी तकरीज लिखी गई, इसमें आला हजरत ने लिखी है, जिसमें इसके सफ़ा नंबर 523 है ये किताब की, जिसमें इस्माइल दहलवी की तकफीर की गई है और आला हजरत ने उस पर तकरीज लिखी है और फरमाया कि इसके मैं मिन जुमला यानी पूरी किताब को मैं पढ़ा और तकरीज लिखी। समझे? अनवार आफ्ताब सदाकत सफ़ा नंबर 23 में आला हजरत के बेहतरीन तकरीज़ात मौजूद हैं, उसमें तमाम चीज़ को तायद किए उसको, जिसमें वो किताब में इस्माइल दहलवी की तकफीर की गई। अब सुनिए कि घुम्मन साहब, इलियास घुम्मन साहब, जो देवबंदी मुतकल्लिम इस्लाम कहलाते हैं देवबंदियों के नज़दीक, तो लिखते हैं जो फतवा आखिर दौर का होगा वो काबिल अमल होगा। कौन सी किताब में ये लिखे हैं उसूल इलियास घुम्मन साहब? जी हाँ, फ़िक़्ह हनफी कुरान व हदीस का निचोड़ है, सफ़ा नंबर 22 में। लिहाजा इससे साबित हुआ कि इमाम अहले सुन्नत ने इस्माइल दहलवी की तकफीर कर दी थी और यही काबिल अमल है, और आखिर में यही फतवा आयद हुआ हो उन पर, और अगले जो फतवा जो अफवाही तौर पर थे उस पर सुकूत अख्तियार किए थे, लेकिन बाद में ये 1338 हिजरी में उन पर कुफ्र का फतवा आयद किए हैं। ये कहना गलत है कि उनको मुसलमान कहा है, कहीं किसी किताब में इस्माइल दहलवी को मुसलमान करार नहीं दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा है ना कि भाई मैं उनको काफिर नहीं कहता जी। पहले कहे थे, जो अफवाहें उड़ी थी ना, जो पहले की कहे थे, लेकिन आफ्ताब सदाकत जो किताब छपने के बाद उसमें इस्माइल दहलवी की तकफीर की गई है और वो किताब आला हजरत ने तायद की है पूरी। मैंने किताब पढ़ी है कह करके, तो ये हवाला अगर पढ़ लेंगे तो आपको बयन हो जाएगा, जाहिर हो जाएगा कि आला हजरत ने इस्माइल दहलवी की तकफीर की है। नहीं, हम उसको पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन हम ये कह रहे थे कि अल मुहन्नद अल मुफन्नद का जो आपने मुताला किया तो इससे आपके एतराज़ात दूर नहीं हुए? बिल्कुल नहीं। अल मुहन्नद में तो इतने खराबी मुझे नजर आई है, उसमें अपने अकायद जो है ना, उसको अपने अकायद ही के रद्द कर दिया है अल मुहन्नद में। जो पहले वाली अकायद हैं, जैसे कि हिफ्जुल ईमान है, बराहीन कातिया है ना, और तक़वियतुल ईमान है, तमाम ही के अपोजिट उसमें लिखे हुए हैं। तो मैं एक बात पूछा मैं आपसे कि ये तक़वियतुल ईमान में मर के मिट्टी में मिलने वाला लिखा है, तो इस्माइल दहलवी को आप क्या समझेंगे इससे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से वसामुल हरमैन पे हरम शरीफ की दस्तखत हुई थी, तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी वहाँ भाई दर्श दे रहे थे, उन्होंने ही वहाँ से ना खत लिखा कि ऐसे मामलात हैं, तो सारे उलमाए देवबंद ने इत्तेफाक करके मशवरा करके तमाम अकायद के बारे में कि हम लोगों ने इन तमाम चीज़ों को जो लिखा है कि नहीं लिखा है, अल मुहन्नद अल मुफन्नद को उन्होंने मुकम्मल तौर पे लिखा, उसका जवाब, और ये सारे जवाबात मौजूद हैं। अच्छा, हुस्सामुल हरमैन के मुतालिक आपको और अल मुहन्नद के मुतालिक क्या मामला है उसमें बात करेंगे। मैं सिर्फ ये मसला अभी पूछ रहा हूँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसको कल रख लेंगे, समझे? एक एक मसाइल को जब हल करेंगे ना, तो लोगों को भी मालूम होगा कि हाँ भाई ये मामला है, और ये जो सही है उसको सही कहिए, या तो अल मुहन्नद सही है या तो तक़वियतुल ईमान सही है। तक़वियतुल ईमान की वो इबारत हमारे पास भेजी जिसको आप बता रहे हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ भेज देंगे। ईमान उर्दू में लिखी है या फारसी में लिखी है? जी जी जी। तक़वियतुल ईमान ये उर्दू में तहरीर है, जिसमें हदीस पाक शाह इस्माइल शहीद ने उर्दू में लिखा था या फारसी में लिखा था? पहले उन्होंने अरबी में लिखी थी, समझे? उसके बाद उसको तर्जमा किया गया उन्हीं लोगों ने, तो उन्हीं के आदमी लोगों ने यानी देवबंदी हजरात ने उसको खुद तर्जमा किया है।
तो तकवीयतुल ईमान अरबी में लिखी हुई थी? जी, पहले अरबी में लिखी थी, नहीं, ऐसा तो फारसी नहीं में है, लिखे थे। अरबी में नहीं, इसका मुझे फारसी इल्म में। नहीं है, लेकिन मैं अपने जोम ख्याली पर कह रहा हूँ। ये तो उर्दू ही में लिखे हुआ है, इस्माइल देहलवी खुद लिखे हैं, तहरीर किए हैं इसको। ये अत-तौहीद किताब थी ना, हाँ मुझे याद आ गई, अत-तौहीद किताब थी जो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के, जो उसको ले करके उसके तर्जमा जो लंगड़ी उर्दू में इन्होंने तर्जमा किया और लिखे तक़वियतुल ईमान। ये फारसी वगैरह में नहीं लिखी गई किताब, बल्कि उर्दू ही में पहले से ही है, फारसी में कहीं पर तक़वियतुल ईमान नहीं है। ये इसका उमूमन जितनी किताबें हैं, जी उमूमन जितनी किताबें हैं अक्सर फारसी में थी, नहीं उर्दू नहीं नहीं, तर्जमा किया वो गया है। वो सिराते मुस्तकीम जो लिखे थे ना, वो जी वो फारसी में लिखे थे उन्होंने। जी। उसका तर्जमा भी देवबंद वाले किए हैं, उसका तर्जमा किए, लेकिन अलबत्ता ये तक़वियतुल ईमान उर्दू पहले से उर्दू ही में लिखी गई है, जिसका सफ़ा नंबर 88 है एक किताब। और दूसरी किताब मैं देखता हूँ इसमें मौलाना गुलाम गौस हजारवी देवबंदी, ये अकाबिर में से, खुलफा अकाबिर में से होते हैं। एक तकरीर में इनायतुल्लाह खान मशरिकी का रद्द करते हुए, इनायतुल्लाह खान यानी ममाती देवबंदी कहलाते हैं ये, इनायतुल्लाह खान मशरिकी नहीं का नहीं रद्द नहीं, करते हुए। नहीं ममाती को देवबंदी मत कहिए। ममाती तो इसके कायल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर करके मिट्टी हो गए ना, हाँ नाउजुबिल्लाह। हाँ हाँ, ये वो ममाती देवबंदी नहीं होते हैं। ममाती बिल्कुल एक अलग फिरका है। जी 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 जी, ममाती ये अपने आप को कहता है वो लोग, हम लोग देवबंदी हैं, ममाती देवबंदी कहता है वो लोग। तो वो आप लोग कहता हो नहीं, अलग की यानी बात है, लेकिन देवबंदी लोग तो उन पर फतवा दिया है, कुफ्र का देखिए फतवा दिया है। ये अकीदा नहीं है हम लोगों का कि जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर के मिट्टी हो गए। अब हम्म, जो इबारत आप भाई बता रहे हैं उसको मेरे पास भेजिए, जी जी बिल्कुल भेज आवाम हम दूंगा। ना ये कि हाँ। गुलाम गौस हजारवी देवबंदी ने ममाती देवबंदी इनायतुल्लाह के रद्द करते हुए क्या लिखते हैं, देखिएगा। ये देखो मुसलमानों, मेरे हाथ में तज़किरा है, इसमें लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी हो गए। क्यों मुसलमानों, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है या नहीं? मुसलमानों ने बैक आवाज कहा तौहीन है, तौहीन है। मौलाना हजारवी ने कहा, अब आप लोग ये बताएं कि हम रसूलुल्लाह की तौहीन किसी के डर के मारे बर्दाश्त करें? आवाम के मजमे से आवाज आई, हरगिज हरगिज नहीं, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सवाने हयात हजरत मौलाना गुलाम गौस हजारवी, जिल्द नंबर अव्वल, सफा नंबर 151 मौजूद है ये इबारतें। ये तो आपके अकाबिर कह रहे हैं कि जो मर के मिट्टी में मिलने वाला कहे, बयान करे, वो गुस्ताखी है। अगर काश मौलवी गुलाम हजारवी देवबंदी जो आपके अकाबिर हैं, इनायतुल्लाह ममाती के किताब के तज़किरा के साथ अपने मौलवी इस्माइल देहलवी की किताब तक़वियतुल ईमान की वो इबारत पढ़ ली होती, जिसको मैंने पढ़ा है और मुसलमान एतराज़ करते हैं, तो शायद ये मसला ही हल हो जाता, वो फैसला सुना देते, तो आप लोग को शक नहीं होता। अभी समझे? आप पढ़े, आपके पास तक़वियतुल ईमान है अभी? होगी, उसको निकालना पड़ेगा कि कहीं लाइब्रेरी में होगी। सफ़ा नंबर 88 में देखिएगा। ये और अल मोहन्नद में इसका अपोजिट फतवा है, जो ऐसा है वो जो मर के मिट्टी में मिलने वाला अकीदा रखे तो हम उसको तायद नहीं करते हैं, हम नहीं मानते हैं कह करके लिखा है, लेकिन कोई हुक्म उसमें नहीं लगाया है। लेकिन दूसरी किताबों में हुक्म है, जैसे बहुत सारे और किताबों में है, जैसे मौलवी अल्लाह यार चकड़ालवी देवबंदी ने भी इन पर ममाती देवबंदी का रद्द करते हुए, जो मर के मिट्टी में मिलने वाला मानते हैं उसको काफिर व मुश्रिक करार देते हैं। लेकिन बाज़े देवबंदी हजरात क्या कहते हैं इसका, कि वो मर के मिट्टी में मिलने से मुराद क्या है, वो लोग लेते हैं मर के मिट्टी से मिले, मिले को मिलने से नहीं, मैं को हटा करके से मिल गए, यानी कब्र में लिहाद में लेट गए कहते हैं। में और से में बहुत फर्क होता है ना।
मिट्टी में मिला अलग है, मिट्टी से मिला अलग है, ये समझे। मिट्टी में मिला, सही बात है, दोनों का माना दोनों बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, एक नहीं हो सकता है। नहीं, मैं ये कह रहा था हजरत के सीरियल नंबर से उमूमन अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद में जब एतराज़ात सारे हुए थे तो उलमाए देवबंद ने सब मिल करके इसका तमाम जवाब दिया है। अब इसके बावजूद नहीं तसल्ली हो रही है तो जो एतराज़ात हैं उनको नोट करके रखिए, उस पर बात हो जाएगी। अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद में मुझे बहुत सारे एतराज़ हैं। पहले नंबर तो उनके सवालात ही पर एतराज़ है, और उसके जवाबात अपने अकायद के ख़िलाफ़ जो लिखे हैं तो वो मानते ही नहीं हैं, समझे। अब रही बात ये, मैं बात कर रहा था मर के मिट्टी में मिलने के मुतालिक, तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि और ममाती देवबंदी का अकीदा इसमें बयान किया है, और जो ममाती लोग इसको मिनोअन वही अमल कर रहे हैं जो तक़वियतुल ईमान में है, लेकिन कुछ देवबंदी हजरात जिसे हयाती अपने आप को कहते हैं उस पर अमल नहीं करते, बल्कि उस पर फतवा भी देते हैं। जैसे खुतबाते हकीमुल उम्मत में भी मर के मिट्टी में मिट्टी हो गए अलियाज़ु बिल्लाह, ये नजदियों का अकीदा है कह करके लिखे हैं हकीमुल इस्लाम में। हाँ, हकीमुल इस्लाम नाम है, खुतबाते हकीमुल इस्लाम, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 19 में। जी, वो कारी तैयब साहब लिखे हैं, इसको बयान किए हैं। और ममाती देवबंदी देखिएगा, ये ममाती की बात आ गई तो उनके बारे में तो मैं छेड़ना ही पसंद नहीं करता हूँ। वो लोग बहुत बदबख्त होते हैं, समझे, इतना बदजबान होते हैं वो लोग। बात करता हूँ मैं उन लोगों से, कभी कभी बहुत गालियां दबकते हैं, इसीलिए मैं उनको पसंद ही नहीं करता। एक किताब है फजले खुदाबंदी, है ना, ये उमर कासमी जो देवबंद में उस्ताद हैं, इन्होंने लिखा था। मैं इनको फ़ोन लगाया था लेकिन वो उठाए नहीं, उनका बच्चा बात कर रहे थे, इसलिए मैं फिर मौका नहीं मिला मुझे बात करने का। तो उनकी किताब मैं पढ़ रहा था, तो इसमें फजले खुदाबंदी सफ़ा नंबर 53 में अबू अयूब देवबंदी ने फजले खुदाबंदी के मुकदमा में, यानी मुकदमा लिखे हैं वो, ममाती देवबंदियों के मुतालिक लिखे हैं उसमें, जो इन ममातियों को देवबंदी कहे वो हलाली नहीं है। फजले खुदाबंदी सफ़ा नंबर 53 में लिखे हैं, समझे। जो ममातियों को देवबंदी कहे वो हलाली नहीं है, यानी वो साफ इतने सख्त जुमला इस्तेमाल किए हैं सफ़ा नंबर 53 में। मजीद आगे लिखा, बाकी हम और हमारे अकाबिर ना उनको अहले सुन्नत व जमात देवबंद समझते हैं, ना समझते हैं ना समझेंगे। फजले खुदाबंदी सफ़ा नंबर 53 ही में लिखे। फिर उमर कासमी साहब हैं, उमर कासमी साहब इसके राइटर हैं, लिखते हैं। मौलवी उमर कासमी देवबंदी ने मुतादिद मकामात पर ममातियों को देवबंदी होने का से इनकार किया है। आपको एक हवाला सुनाता हूँ, सुनिए उसको। फजले खुदाबंदी सफ़ा नंबर 109 है, हम इनको अहले सुन्नत व जमात से खारिज समझते हैं, ये लिखे हैं ये फजले खुदाबंदी में। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ, इसी का मुताला मैं आगे कर रहा था, करते करते गया मैं, तो मौलवी उमर कासमी ने देवबंदी उलमा की एक फहरिस्त दर्ज किया है, अकाबिर उलमाए देवबंद का एक फहरिस्त उसमें लिखा, फहरिस्त तैयार किया है। फहरिस्त के इख्तिताम पर लिखे हुए हैं, वो लिखते हैं, ये वो उलमाए किराम हैं जो देवबंदियों की शान है, जिनसे देवबंदियत की पहचान है, जो देवबंद के अकाबिर हैं। फजले खुदाबंदी सफ़ा नंबर 122 और 123 में। इस फहरिस्त में देखिएगा 21 नंबर जो लिखा हुआ है ना हजरत, उसमें क्या लिखते हैं, 21 नंबर में नाम लिखते हैं, किसका नाम लिखते हैं, हजरत मौलाना सैयद इनायतुल्लाह शाह साहब बुखारी। और सैयद इनायतुल्लाह शाह साहब बुखारी कौन है, ममातियों के सरदार हैं। और यही किताब में कह रहे हैं ममाती जो होते हैं वो हलाली नहीं है, वो देवबंदियत नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो अहले सुन्नत व जमात नहीं है, लेकिन अपने अकाबिर के फहरिस्त में शुमार किया है ममाती के सरदार को, उमर कासमी।
तो उमेर कासमी इस फतवे के अपने ही उसूल से उमेर कासमी और जो इस फजले खुदाबंदी को मानेगा वो हलाली थोड़ी साबित हो रहा है, समझे। ये बड़ा अफसोस हुआ मुझे, एक ही किताब उमेर कासमी को लिखते वक्त सोचनी चाहिए कि इनके अकाबिर कौन कौन है। ममाती को अपने अकाबिर के गिना करके ये देवबंद की शान है, आन है, पहचान है लिख करके खुद ही फंस गए हैं ना। इसलिए मैं उनको फोन किया था लेकिन फोन उठाए नहीं, ये जिमनन बात आ गई। बहरहाल नहीं ठीक है, मैं ये कह रहा था हजरत ना कि ठीक है आप जो कह रहे हैं अल-मुहन्नद अल-मुफ़न्नद पे बहुत सारे एतराज़ात हैं। जी 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 और जी एतराज़ात मतलब आपको ये है कि मतलब उसमें अकीदा लिखा कुछ और, इसमें जवाब कुछ और है, जी यानी जी आपका कहने का मतलब ये है। जी 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 तो इतने हजरत एतराज़ात। जी जी हजरत आपका मैं नंबर अगर मुझे सेंड कर लेते। हाँ नंबर हम दे देंगे, हम अपना नंबर दे देंगे। आपके नंबर दे दीजिए तो वक्फन वक्फन एक एक मसला हल करते जाएंगे, ताकि इंशाल्लाह अज़ीज़ अगर मेरी गलती हुई तो आप इस्लाह कर दीजिए, अगर आपकी गलती होगी तो इंशाल्लाह अज़ीज़ उसमें आप इस्लाह कीजिए। ठीक ठीक। है, असल में मैं थोड़ा सा बिजी रहने की वजह से मैं आपके पास फोन नहीं कर पाया। मैं तो हमसे जब बताया हो तो जी हम लोगों का मिजाज देखिए संजीदगी से बात करने का, बदतमीजी या ये सब नहीं, मामला समझ में आए ना अपनी जगह पर है, जी लेकिन जी बात करने का जो उसूल है एक अदब और उसूल के और तमीज से ढंग से हम लोग बात करते हैं, जी जी और लोगों की तरह ऐसे नहीं करते। कोशिश बिल- आदमी करेगा जो हकीकत है वो सही, तो सही बात है। आपके ये जुमला अच्छा लगा कि भाई अगर आप गलत हो तो आपकी इस्लाह हो, मैं गलत हूँ तो मेरी इस्लाह हो, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मामला अल्लाह रसूल के लिए कुरान और हदीस से आदमी काम करे, शख्सियत परस्ती और ये सब चीजें, जी जो चीज जी सही है उसको इसलिए कि सही माना सबसे जाए। पहले हमें मद्देनजर ये रखना है कि हमको भी इस दारे फानी से कुछ करनी है, सबका ईमान सलामत रहे, अल्लाह रसूल राजी रहे, कोई मौलवी काम थोड़े देगा हम लोगों को। नहीं सही बात है। मैं वही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं मशगूल ज्यादा रहता हूँ ना, इसकी वजह से मैं आपसे बात नहीं कर पाया। और देखिए अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास कम से कम जो है 10 कॉल आ चुके हैं, जी तो नंबर जो है ना हम आप सेंड कर देंगे, हम अफजल से हम आपका जी नंबर या जी फोटो में दे हजरत दूंगा। नंबर बता दें। बोलिए 7499 7499 71 71 54 54 64 64। हजरत आपका इसमें चलिए मोहम्मद असलम नाम है मेरा। मोहम्मद असलम कासमी है, मेरे कासमी नहीं, हम नौमानी है। नोमानी से। अच्छा ठीक है, बड़ी खुशी हुई आपसे, इंशाअल्लाह उल अजीज अल्लाह तबारक व ठीक तआला है, हाँ तमाम इंशाल्लाह मुसलमानों फिर को बात हो जाएगी। राह रास्त में जी लाए। जी। ठीक है चलो ठीक ठीक है, दुआ की दरखास्त है उनके ठीक सिवा। है।